Hello students, welcome to this new video. Now I'm going to take up the remaining part of your chapter 6, that is factorization. Okay, so we were discussing some questions related to remainder theorem. So now we move to question number 4. Up to question number 3 we had already discussed. So now I will move to question number 4. Using remainder theorem, find the value of k. Okay, I think 4 I had discussed, so I will move to question number 5. So using the remainder theorem, find the values of a if the division of by x minus 1 leaves 2a as the remainder. Okay, so question number 5. So again, your polynomial is x cube plus 5x square minus ax plus 6 एंड x माइनस 1 से इसको आपको डिवाइड करना है. सो x माइनस 1 को हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल. सो यू विल गेट x. सो मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू 1 यहाँ पे रखूँगा एंड रिमाइंडर जो बचेगा वो कितना है, 2a. नाउ पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1 इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, वी हैव 1 क्यूब प्लस 5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस a इंटू 1 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 2a. सो यू हैव 1 plus 5 plus 6 and it will become 3a. Minus a will go to the opposite side, so it will become plus. So 2a plus a will become 3a. So it will be 12. 12 upon 3 is equals to a. So your a is equals to 4. So this is what you get, the value of a as 4. So now moving to next question, sixth, first part, what must be subtracted. Question number 6, part 1, what must be subtracted from 2x square minus 5x so that the resulting polynomial leaves as 2 as remainder when divided by. Okay, so your polynomial is 2x square minus 5x एंड जिससे इसको डिवाइड करना है वो हमारा है 2x प्लस 1. सो इसको मैं 0 के इक्वल कर दूँ. सो हमें इतना हमें पता चल गया कि x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में हमें क्या रखना है, x माइनस 2. सो एंड रिमाइंडर क्या होना चाहिए हमारा, 2. आर ई एम इज इक्वल्स टू 2. ओके, सो इट्स क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, मतलब ये जो पॉलिनोमियल है इससे कुछ ना कुछ हमें सब्ट्रैक्ट करना है. सो मैंने माना y में सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ. सो नाउ पुटिंग x is equals to minus 1 by 2. Now student, I would like to remind you one thing. जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, सो आपको एक लाइन लिखनी होगी, let y is subtracted from the polynomial, therefore new polynomial is equals to this 2x square minus 5x minus y is equals to 0. You have to write all these lines just for a good representation of the question. So now मैं x की जगह minus 1 by 2 रखूँगा. So 2 into minus 1 by 2 2 into minus 1 by 2 square minus 5 into minus 1 by 2 minus y, रिमाइंडर आपका कितना बच रहा है, 2. So now you have to solve this particular equation. So I will erase all these things which are written over this particular equation. I don't think so you have a problem with all these things. So now what you have is 2 into 1 by 4, because minus ka square again it will become 5 by 2 minus y is equals to 2. So you have to solve this particular equation and you will get the get your desired result. So in this way you can calculate y. Now moving to the next question, second part of the question number 7 is same. Okay, it is, I will do it for you because there are some other terms like r1 r2 are also appearing in the question. So second part of question number 7 is
द पॉलिनोमियल जो आपको गिवन है इट इज़ ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3 एंड सेकेंड आपका पॉलिनोमियल है 2x क्यूब minus 5x plus a. When divided by x minus 4, leave the remainder as r1 and r2. Okay, so इसका रिमाइंडर हमारा r1 होगा एंड इसका रिमाइंडर आपका r2 होगा एंड किससे हम डिवाइड कर रहे हैं x minus 4 से. सो कंपेयरिंग x minus 4 to 0 वी गेट x इज इक्वल्स टू 4. मतलब हमें इस पॉलिनोमियल में दोनों पॉलिनोमियल्स में x की वैल्यू क्या रिप्लेस करना है 4. एंड एक रिलेशन आपको दिया है 2r1 is equals to r2, then find the value of a. So now basically हम क्या करेंगे, दोनों में x is equals to 4 रिप्लेस करेंगे. Okay, so now and remember one thing that ये जो हमारा पॉलिनोमियल है उसका रिमाइंडर हमारा r1 है. So x is equals to मैंने 4 रख दिया. So your a into 4 cube plus 3 into 4 square माइनस 3 एंड रिमाइंडर आपका इसका क्या बचेगा r1. सो इट हैज़ ये 64 आपका हो जाएगा, ये 16 3 ज़ा 48. सो ये 64a आपका आ जाएगा एंड ये आपका 48 आ जाएगा माइनस 3 इज इक्वल्स टू r1. ओके, आई विल राइट द रिमेनिंग थिंग ऑन द नेक्स्ट पेज. सो आई हैव 64a प्लस 48 minus 3, so it will become 45 is equals to r1. That is your equation 1. Now I have to substitute x is equals to 4 in the second polynomial as well. So your second polynomial is is this. सो आपको क्या करना है, x इज इक्वल्स टू 4 इस पॉलिनोमियल में भी हमें रखना होगा. सो अगेन यू कैन सी दैट जब यहाँ 4 रखेंगे सो 64 हो जाएगा. 64 इस जगह पे जब आप 4 रखोगे सो इट विल बिकम 64 2 ज़ा, सो इट विल बिकम 128. यहाँ पे जब x की 4 रखोगे सो इट विल बिकम 20. सो 128 माइनस 20 प्लस a. आई विल राइट डायरेक्ट 128 minus 20 plus a plus a is equals to r2. सो ये आपका आ जाएगा 108 plus a is equals to r2. So this is what you have now. This is your equation 2. अभी आपको एक relation दिया था and your relation was 2r1 is equals to r2. So r1 आपका कितना आया है, so your r1 is 64a plus 45. 64a plus 45 is equals to r2. सो ये आपका 108 प्लस a आ जाएगा. 108 प्लस a आ जाएगा. सो इट विल बिकम 128a माइनस a एंड ये आपका 108 माइनस 90. सो ऑन सॉल्विंग यू गेट 18 हेयर एंड यहाँ से आपका 127 आ जाएगा. सो ए अपॉन में आप 127 लिख दोगे, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ ए. नाउ आई होप अगेन दिस क्वेश्चन you are comfortable with this question now. Now question number 8, using remainder theorem find the remainders obtained when is divided by and find
hence find k if the polynomials of if the sum of remainders. Okay, so again you have to आपके पास यहाँ पे एक हमारा पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इज एक्स क्यूब प्लस के एक्स प्लस 8x प्लस के, दिस इज़ योर पॉलिनोमियल। एंड यहाँ पे जो आपको डिवाइड करना है, सो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 से, सो x इज इक्वल्स टू -1 एंड अगेन x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, सो x इज इक्वल्स टू 2। मतलब फर्स्ट टाइम आप x इज इक्वल्स टू -1 रखोगे, सो जब x इज इक्वल्स टू -1 रखोगे तो आपका क्या होगा, सपोज मैंने यहाँ पे -1 रख दिया, सो -1 क्यूब k इंटू -1, you get a simple equation and जो हमारा इसका बचेगा जो भी कैलकुलेशन, वो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। मतलब ये है, जब आप इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में या पॉलिनोमियल में कि x इज इक्वल्स टू -1 रखेंगे, सॉल्व करेंगे, सो आपको एक वैल्यू मिलेगी जिसमें सिर्फ k होगा। नाउ सिमिलरली जब आप x इज इक्वल्स टू 2 इस पॉलिनोमियल में रखेंगे, अगेन यू विल गेट अ वैल्यू विच कंटेन्स a, एंड दोनों का सम कितना दिया हुआ है 1। सो जब आप दोनों रिमाइंडर्स को ऐड करेंगे, मतलब -1 रखने पे जो बचा एंड 2 रखने पे जो हमारा रिमेनिंग हुआ, व्हेन यू ऐड बोथ, उनका सम आपको किसके इक्वल करना होगा 1, एंड इन दिस वे यू गेट द सोल्यूशन फॉर द k। नाउ दीज क्वेश्चंस आई लीव टू फॉर यू टू सॉल्व। Now, question number 9 is something new. By factor theorem, show that the x plus 3 and 2x minus 1 are the factor of, एक आपको polynomial दिया है 2x square plus 5x plus 3. So आपको ये show करना है कि x plus 3 and 2x minus 1 are the factors of this particular polynomial. So x की वैल्यू हम क्या रिप्लेस करेंगे, -3 रख के चेक करते हैं हम लोग। So 2 इंटू -3 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 एंड प्लस 3, सो ये कितना हो जाएगा आपका 9, 9 2 18, ये -15 हो गया, 5 3 15 एंड ओके दिस इज़ नॉट, दिस इज़ योर -3। सो यहाँ पे आप क्या रखोगे, -3, यहाँ से आपका ये क्वेश्चन है, वो 2x प्लस 1 हमारा फैक्टर दिया हुआ है। सो ये -15 हो जाएगा एंड ये -3 हो जाएगा। सो यू कैन सी दैट यहाँ पे पॉजिटिव 18 है, यहाँ पे नेगेटिव 18, तो हो रहा है 0। सो x की वैल्यू जब हमने -3 रखी, सो दिस पॉलिनोमियल इज रिड्यूस टू 0। सो दिस इज, अगर जो हमारा रिमाइंडर विच मीन्स x इज इक्वल्स टू -3 रखने पे इसका रिमाइंडर कितना बच रहा है, 0। सो अगर जो रिमाइंडर हमारा 0 बचता है, देन this x plus 3 will be the factor of this particular polynomial. So मतलब यहाँ पे ये है कि अगर जो कभी आपको ऐसा प्रूफ करने को आए कि एक पर्टिकुलर, सपोज आपको दिया है ax प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका पॉलिनोमियल है, और आपको चेक करना है कि x इज इक्वल्स टू a या माइनस a, इसका एक या x प्लस a, सॉरी, you have to check that x plus a is a root of this particular is a factor of this particular polynomial or not। तो क्या करेंगे आप, x plus a को 0 के इक्वल कराएंगे, देन x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -a, और x की वैल्यू -a आप यहाँ पे रखेंगे। सो अगर जो x की वैल्यू -a रखने से ये पूरा हमारा 0 के इक्वल हो जाता है, सो विच मीन्स x प्लस a इज़ द फैक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। सो आई होप, और यही यहाँ पे हमने क्वेश्चन में सॉल्व किया है। सो जब आप 2x माइनस 1 को प्रूफ करने जाएंगे, 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, सो यू हैव टू रिप्लेस x इज इक्वल्स टू 1/2। x की वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/2, एंड जो आपका पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 5x उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, एंड जब पूरा सॉल्व करेंगे, सो योर रिजल्ट विल बी 0। सो इससे प्रूव हो जाएगा दैट 2x माइनस 1 इज ऑल्सो अ factor of this particular say polynomial। Okay, now moving to question number 10. Without actual division, prove that is exactly divisible by
So again your polynomial is x to the power 4 2x cube minus 2x square प्लस 2x माइनस 3, ये आपका पॉलिनोमियल है। एंड हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो पॉलिनोमियल है ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, मतलब पूरी तरह से डिविजिबल, विच मीन्स रिमाइंडर विल बी ज़ीरो। सो नाउ अगेन आई विल डू इज़ आई विल फैक्टराइज दिस, क्योंकि इसका फैक्टराइजेशन बहुत डिफिकल्ट है एंड डिवीज़न हमें करना नहीं है। सो हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। सो यू नो दैट एक्स स्क्वायर 3x को हम ब्रेक कर लेंगे, 3x minus x minus 3, taking x as common we get x plus 3 minus 1 as common, again we get x plus 3. So I will solve on the next page. So we have x plus 3 and x minus 1 is equals to 0. So we get x is equals to 1 and minus 3. So this is what we get. So इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इसके जो फैक्टर्स आए हमारे वो x प्लस 3 आए। यू कैन सी दैट दीज आर टू फैक्टर्स। सो नाउ एंड उनको जब हमने सॉल्व किया तो x की वैल्यू 1 आई एंड 3 आई। सो हम क्या करेंगे, ये 1 एंड माइनस 3 जो है ये इस पॉलिनोमियल में रखेंगे, ये जो हमारा x टू द पावर 4 वाला पॉलिनोमियल है। वी विल पुट x इज इक्वल्स टू माइनस 3 एंड x इज x इज इक्वल्स टू माइनस 3 एंड x इज इक्वल्स टू प्लस 1 इन दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। एंड जब आप रखोगे सो यू विल फाइंड दैट फॉर x इज इक्वल्स टू 1, ये जो हमारी दो वैल्यूज़ आई हैं 1 एंड माइनस 3, दोनों के लिए ये जो पॉलिनोमियल हमारा है दिस पॉलिनोमियल दिस रिड्यूसेस टू 0। सो हम कह देंगे so in this way we can prove that this particular polynomial is exactly divisible by this polynomial. So I hope again now you can solve this question. Okay, so now again I will move to the next question, that is question number 11. So in question number 11 show that x minus 2 is a factor of this, hence factorize. Okay, so again you will आपका जो x माइनस 2 है वो फैक्टर प्रूफ करना है। सो x माइनस 2 को 0 के इक्वल कर लो। सो यहाँ से अब की जो वैल्यू आ जाएगी x की वो कितनी होगी, 2 होगी। सो दिस इज योर यू नो x इज इक्वल्स टू 2 इज द फैक्टर। सो अब आप x इज इक्वल्स टू 2 इस पॉलिनोमियल में रखेंगे। सो योर पॉलिनोमियल इज 3x माइनस x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। सॉरी, जब आप x इज इक्वल्स टू 2 रखेंगे, सो ये 0 अभी मैं नहीं कर रहा इसे, इट विल बी इक्वल टू द 0। सो आप x इज इक्वल्स टू 2 रख के ट्राई कर लें, दिस पॉलिनोमियल विल रिड्यूस टू 0। अब इस पॉलिनोमियल को आपको फैक्टराइज करना है। सो एक तो हमारा कॉमन निकल ही आया, मतलब x माइनस 2 विल बी अ फैक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर। सो नाउ वी हैव 10 3s are 30। सो 30 के आपको दो फैक्टर्स करने हैं जिनको सब्ट्रैक्शन करने पे हमारा कितना है, 1 आना चाहिए। सो वी हैव 3x स्क्वायर minus 6x plus 5x minus 10. In this way you can solve. So एक फैक्टर आपका x minus 2 आएगा and other factor you can find just by solving this particular quadratic equation, also polynomial. Now again question number 12. Now question number 12 I think is a different problem, so I have to discuss this problem in detail. Using factor theorem show that, hence factorize the polynomial completely. Okay, so this is an interesting question and I think most difficult one for this exercise. x minus 2 आपको ये शो करना है इज अ फैक्टर। सो x minus 2 इज इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 2। सो अब आप ये प्रूफ करना है पहले। सो ये पॉलिनोमियल जो है x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। सो x इज इक्वल्स टू 2 आप इस पॉलिनोमियल में रखेंगे एंड दिस पॉलिनोमियल विल रिड्यूस टू 0। सो योर फर्स्ट पार्ट इज डन, दैट इज आपको ये जो प्रूफ करना था कि, बट यू हैव टू सॉल्व इन कॉपी। मैं जैसे कर रहा हूँ आपको ऐसे लिख नहीं देना, यू हैव टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन इन योर कॉपी। नाउ इसको फैक्टराइज करना है। सो फैक्टराइज वाली प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूँगा बिकॉज इट इज़ न्यू टू ऑल ऑफ यू। सो हमें क्या करना है, एक्स इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। सो हम क्या करेंगे, ये जो पॉलिनोमियल आपका है इसको हम डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे एंड डिवाइड किससे करेंगे, जो हमारा दिया हुआ है फैक्टर उससे डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। सो
अभी हम इधर x माइनस टू लिख लेंगे एंड यहाँ पे हम ऊपर जो है वो जो भी डिवीज़न का रिजल्ट आता है वो लिखेंगे। सो सबसे पहले हम क्या सेलेक्ट करेंगे, x स्क्वायर। सो ये क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर। आई एम राइटिंग इन द स्मॉल, छोटा छोटा मैं लिख रहा हूँ जस्ट बिकॉज इसी मतलब ये डिवीज़न में इसी पेज पे कैलकुलेट करना है। सो एक्स क्यूब विल बी कैंसल्ड। ये आपका साइन चेंज होता है सब्ट्रैक्शन में, जब भी डिवीज़न कराएंगे एंड सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो साइन चेंज होता है। ऑल दीज रूल्स यू नो फ्रॉम योर क्लास 8th और 9th। सो अब क्या करेंगे, हम 3x से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x, सो इट विल बिकम 3x स्क्वायर माइनस 6x minus plus. Now if anybody is uncomfortable with the division, you can tell me through WhatsApp, because I am assuming that all of you know this, because these are concepts. Minus 4, these are the concepts you have learned in class 9th and 8th also. So I'm not going in detail how this division is actually taking place. So now I will take 2 here, so it will become 2x minus 4 is equals to 0. So now हमने देख सकते हैं आप रिमाइंडर हमारा ज़ीरो बचा। सो ये ई बात हम ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं कि दैट x माइनस टू इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। नाउ सो इस पॉलिनोमियल को है, नेक्स्ट पेज पे मैं लिखूँगा x माइनस टू, ये जो पॉलिनोमियल हमारा दिया हुआ था एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल्स टू x प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस टू, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस टू। ओके, मतलब इस ये जो पॉलिनोमियल था अब उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सो x प्लस टू यू ऑलरेडी नो, एंड ये जो पॉलिनोमियल है इसका फैक्टर आपका x प्लस वन एक्स प्लस टू आ जाएगा, बिकॉज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका फैक्टराइजेशन आप जानते हो। सो नाउ इन दिस वे वी कैन गेट द ऑल द फैक्टर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। नाउ प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, बिकॉज यहाँ पे पावर 3 है एंड पावर 3 पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन का कोई डायरेक्ट रूल नहीं है, उसको हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। पहले हम उसका एक एक फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, फिर उस फैक्टर से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, डिवाइड से जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बचेगा उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। दिस इज़ द प्रोसेस हाउ वी go about whenever we ask to solve a factorize a 3 degree polynomial. So now again question number 13, again I will leave it to you to solve. I will move to question number 15. अब question number 14 सॉरी। सो ये आपका x क्यूब है प्लस 2x स्क्वायर है माइनस 5x एंड माइनस 6 है। सो ये आपका हमारा एक 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है एंड इसको आपको फैक्टराइज करना है। सो अभी आपके पास यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा है आपको। सो हम क्या करेंगे, इसका एक फैक्टर निकालने की कोशिश करेंगे। सो हम कुछ वैल्यूज अज्यूम करते हैं। पहले यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 1 रखने की कोशिश करेंगे, x इज इक्वल्स टू 2 रखेंगे, माइनस 1 रखेंगे, माइनस 2 रखेंगे। वैल्यूज़ तब तक रखेंगे जब तक हमारा ये पॉलिनोमियल ज़ीरो ना हो जाए। सो अब बेसिकली मैं थोड़ा सॉल्व कर लूँगा ऐसे, बिकॉज सारी वैल्यूज़ रख के चेक करना ये क्वेश्चन को थोड़ा लंदी बनाएगा। सो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे अपने माइंड में थोड़ा कैलकुलेट कर लेता हूँ। सपोज़ मैंने x इज इक्वल्स टू 1 रखा, सो यहाँ से हमें 1 मिलेगा, यहाँ से 2 मिलेगा एंड ये दोनों नेगेटिव वैल्यूज़ हो जाएंगी, तो ऑब्वियसली हमारा ज़्यादा हो जाना है, ज़ीरो नहीं होगा। सो x इज इक्वल्स टू माइनस 1 मैं ट्राई करूँगा। सो x इज इक्वल्स टू मैंने क्या रख दिया, माइनस 1। ये वैल्यूज़ बेसिकली आपको जस्ट गेस वर्क है पूरा। सो माइनस 1 सॉरी माइनस 1 टू द पावर 3 प्लस 2 इंटू माइनस 1 स्क्वायर 5 into minus 1 minus 6, so it will become minus 1 plus 2 minus 5, sorry minus and this minus will become plus 5 and minus 6. So अब देख सकते हैं ये 7 हो रहा है प्लस का एंड ये दोनों मिलके माइनस 7 बनाएंगे। सो नाउ फॉर x इज इक्वल्स टू 1 दिस पॉलिनोमियल रिड्यूसेस टू 0। x इज इक्वल्स टू 1 का माइनस 1 का मतलब ये हुआ कि x, ओके आई विल राइट on the next page, यहाँ मैं कुछ नहीं लिख रहा। so x plus 1 is the factor of the polynomial।
अब हम क्या करेंगे, हमें x प्लस वन से उस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है. सो अगेन मैं यहाँ पे x प्लस वन से डिवाइड करने जा रहा हूँ. आई विल जस्ट राइट एट द टॉप ताकि पूरा पेज हमें मिले सॉल्व करने के लिए. x प्लस वन, दूसरा पॉलिनोमियल हमारा है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 13x एंड प्लस का 6. छोटा सा मैंने लिख लिया है. आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. 2x स्क्वायर से करेंगे क्योंकि हमारा टारगेट रहता है ये जो पहला वाला टर्म है उसे हमें कैंसिल कराना है. 2x स्क्वायर मैंने लिख दिया. सो ये क्या बन जाएगा आपका 2x क्यूब, बिकॉज एक x यहाँ है एंड यहाँ भी आपका आ जाएगा 2x स्क्वायर. सो माइनस करेंगे तो ये हमारा पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा. ये भी माइनस करना पड़ेगा. सो ये माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा बिकॉज वो प्लस है. माइनस 13x. सो अभी हमें इसे कैंसिल करना है. सो मैंने क्या लिख लिया यहाँ, अब देख सकते हैं हमें माइनस लाना है यहाँ पे एक्स स्क्वायर. तो एक एक्स तो है ही, मतलब माइनस एक्स से मैं यहाँ करूँगा. सो ये माइनस एक्स स्क्वायर एंड ये आपका बन जाएगा माइनस वन. ये प्लस कर दो तो ये कैंसिल हो जाएगा. ये प्लस करने पे ये 13 है एंड ये आपका कितना है 13x एंड ये आपका है प्लस का x. सो इट विल बिकम माइनस 12x. ठीक है. एंड ये आपका क्या लिखा हुआ है, आई थिंक ये आपका लास्ट में है जो वो प्लस 6 है. प्लस 6. Okay student, I have written a wrong polynomial here. Actually I have gone to question number 15 to solve. So this is wrong. So यहाँ तक हमारा सही था. x plus 1 is the factor of the given polynomial. So polynomial is actually not this. Polynomial is x cube given polynomial is x cube plus 2x square minus 5x minus 6. एंड यहाँ से आपको डिवाइड करना है x प्लस वन से. सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये पहला हमारा एक्स स्क्वायर आ जाएगा. सो इट विल बिकम एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये पूरा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर बच जाएगा माइनस 5x. सो इसको कैंसिल करने के लिए आपको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो एक्स स्क्वायर एंड ये आपका प्लस x आ जाएगा. अगेन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट. सो दीज टू विल गेट कैंसल्ड एंड यहाँ पे माइनस लगाएंगे. सो ये माइनस 6x बन जाएगा एंड माइनस 6 मैं फिर से लिख लूँगा. तो यहाँ आपको माइनस 1 करना पड़ेगा एंड ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा. यू कैन चेक बाय योरसेल्फ. सो इसका मतलब जो आपका दूसरा पॉलिनोमियल आया वो आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. सो ऑन द नेक्स्ट पेज आई विल राइट ये जो आपका पॉलिनोमियल दिया था एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, ये इक्वल हो रहा है x प्लस वन के. एंड दूसरा पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1. ओके, सो दिस इज़ करेक्ट. नाउ एक फैक्टर तो आपका आ ही गया है. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, बाय यूजिंग योर फार्मूला. बिकॉज अगर जो आप वैसे सॉल्व करने जाएंगे यू विल सफ़र अ लॉट. सो आपका फार्मूला ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1. सो अब a इज इक्वल्स टू कितना होगा 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b इज इक्वल्स टू 1 एंड c इज इक्वल्स टू माइनस 1. So you will have to put all these values and you will get the solution. So now on the same method you have to solve second part of question number 14 and all the parts of question number 15. So I wind up this video. So I think you have enough questions to do from your homework. First 5 questions तो यहीं आपके हो गए. 14th का second part and all 4 questions of 4 parts of question number 15. So now all these things questions are for you to solve from homework. Thank you.